آواز واضح آ رہی ہے اور ہم اس وقت فیس بک پر بھی لائیو ہیں اور ہم سماج کے پیج پر ہم لائیو ہیں اس کے اسٹریم یارڈ کے تھرو فیس بک پر اور آج ہم جس پروگرام کو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مینا پرویز جی، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا تھا۔ ان کے حوالے سے ہم یہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں اور یہ پروگرام لائیو ہم نشر کر رہے ہیں۔ اس پر آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0334295938 0334295938۔ اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے پیغام دے سکتے ہیں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو مینا پرویز صاحبہ کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، انہیں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہم بتاتے چلیں، ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر بھی لائیو ہے اور ہم سماج ریڈیو پر جو ہم نے اس میں بینر میں ایڈریس دیا ہوا ہے اس پر بھی یہ لائیو آ رہا ہے۔ آپ کی کال ہمیں موصول ہو رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلی کال کس کی ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ارشد اقبال کر رہا ہوں۔ کیا حال ہے ارشد صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ارشد اقبال بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے فیبا ریڈیو، رائے زندگی اور کئی ٹیلی ویژن چینل کی ایک معروف آواز مینا پرویز جی، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، ان کے حوالے سے۔ تو آپ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے پہلے کال کی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں سب سے پہلے تو تمام جو لسنرز ہیں ان کی خدمت میں بالخصوص جو رائے زندگی کی ٹیم ہے اور مینا باجی کی جو فیملی ہے ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور انتہائی مصروفیت کے باوجود مجھے آپ کا جو حکم تھا کہ 8 بجے آپ نے حاضر ہونا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور میں مینا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی مددگار شخصیت کی، حامل قانون کی انتہائی دلیر اور عظم شخصیت کی۔ ہمارا ان کے ساتھ تقریباً جو ہے 13-14 سال کی رفاقت رہی ہے، تو ہم نے انہیں ہر موقع پر ایک اچھی دوست، اچھی رہنماز کی طور ہے، تو وہ ان کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ لفظوں میں کم ہے۔ تو ان کے لیے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو کمی ہے وہ ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتی رہے گی، کیونکہ انسان سیکھتا ہے، سیکھنے کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے، تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بالکل۔ اور ان کی کمی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہم ہمیشہ ان کی کمی محسوس کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک اچھی استاد بھی تھی، ایک اچھی میزبان بھی تھی، ایک اچھی آواز بھی تھی، اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمیں ہمیشہ انہیں اپنے اچھے لفظوں میں اور اچھی یادوں میں ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے۔ جی بالکل، بہت شکریہ ارشد اقبال صاحب۔ ارشد اقبال صاحب ایک جانا پہچانا نام ریڈیو کی دنیا میں، ایک بہت پرانے سامع اور ارلو پاکستان کے ایک اہم عہدیدار، اور ہم شکر گزار ہیں ارشد اقبال صاحب کا کہ وہ اس موقع پہ آئے اور مینا پرویز کے حوالے سے۔ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی جتنی بھی ریڈیو پاکستان کی ٹیم ہے، جتنے بھی عہدیداران ہیں، بالکل آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم شخصیت کے لیے یہ پروگرام رکھا، اور اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں اور پوری پاکستان سے مشکور ہیں، اور دعا میں بھی آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی شان و مشاہدہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارا عزم ہے ریڈیو ماضی کے ہوئی ریڈیو مستقبل ہے۔ اس نعرے کے ساتھ اور اس پرچم تلے ہم سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ بابل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ریڈیو کا نام روشن کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مینا باجی کے لیے تمام جتنے بھی لسنرز ہیں بالخصوص رائے زندگی اور فیبا کی ٹیم کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ارشد بھائی، بہت شکریہ۔
فی امان اللہ. شکریہ. یہ ہمارے ساتھ تھے ارشد اقبال صاحب جنہوں نے ہمیں کال کی، اور اب ہمارے پاس کالوں کا سلسلہ شروع ہے. جو دوست کال کر رہے تھے وہ ابھی مصروف تھا، فون فارغ ہے، اور ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی ایک بہت بڑی تعداد سامعین کی موجود ہے. ہمارے ساتھ فیس بک پر مہر عبدالستار سلفی صاحب ہیں، کہتے ہیں مینا پرویز صاحبہ کے بارے میں تعزیتی پروگرام، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور شیخو پورہ سے فیس بک کے ذریعے اعجاز کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم یہاں پہ کال دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک اور سامع کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم منصور بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہر دکھ اور ہر اس طرح کا کوئی انسانیہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ پاکستان جو ہے نا ہر موضوع پہ جو ہے وہ اپنے سامعین کو افزائی کرتی ہے اور مضبوط ساتھ دیتی ہے. تو یہ دکھ کی کڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے نا حوصلہ افزائی ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی میں چاہوں گا آپ اپنا تعارف کرا دیجئے، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، سننے والے شاید کچھ مبہم ہو، تو آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیجئے. سردار منیر سے بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے. مطلب پاکستان میں انٹرنیشنل گلوبل نیشنل آرگنائزیشن کا جو ستورہ ریسرچ کرتا ہے نا. جی بالکل. جی تو اب آپ بتائیے کہ اس حوالے سے کیا آپ کہہ رہے تھے مینا پرویز باجی کے حوالے سے. مینا باجی بہت زبردست ان کے جو ہے نا ہاتھ گزرا آواز کی دنیا کا بہت بڑا ستارہ تھا، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے اخلاق اور اپنی آواز کا بہت زیادہ جو ہے نا دنوں پہ راج کیا. یہاں کے بھی سامنے ہوتے تھے ایک بہترین آواز اور کردار اور کچھ اخلاق آواز وہاں سے پیچھے تھی. تو ان تھوڑے عرصے میں یہ دوسرا کھانا ہے کہ پہلے شمون بھائی جو ہے وہ دنیا پانی سے رخصت ہوئے، اس کے بعد مینا باجی کا یہ ہوا. تو ہم جو ہے نا دکھ اور اس جرنی میں جو ہے وہ کے لیے دعاؤں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر جلیل عطا فرمائے. تو یہ بہت بڑا سانیہ ہے آواز کی دنیا کے لیے. یہ بہت اچھی اور بہت جو ہے نا مخلص ایک آواز جو ہے نا وہ ہم سے رخصت ہو گئی ہے. تو ساتھ ریڈیو پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر موڑ پہ ہر سانیہ کو کسی قسم کی بہت ریڈیو پاکستان جو ہے وہ اپنے بران کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی ریڈیو سامعین ہیں سب کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، دکھ کے میں ساتھ دیتی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی. اور اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیوا ریڈیو جو ہے اس کو سلسلے میں جو ہے نا پیشرفت کرنی چاہیے. تو پھر جو ہے پاکستان بات کی ہے تمام سیاستدانوں کو باقی کے طرف سے پروگرام ہوا ہے اور ادارے طرف سے ہوا ہے. تو یہ تو پاکستان میں دفعہ پھر جو ہے نا وہ بات کی ہے. تو ہم بہت زیادہ مشکل ہیں، شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں باقی لوں گا، باقی دوست جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں. جی بہت بڑی ایک تعداد کال کر رہی ہے. تو سردار منیر اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شامل رہے، اور مینا پرویز صاحبہ کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. فی امان اللہ. بہت نوازش بھائی، بہت نوازش، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی ایک بہت بڑی تعداد سامعین کی پروگرام میں شامل ہے، سن رہی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس اس وقت ایک اور کال ہے. تو ہم کال دیکھتے ہیں کس کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ سر میں عرفان بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے. جی جی عرفان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی سر اللہ کا شکر.
جی آپ سنائیں. الحمدللہ. آج ہم جو پروگرام ہم نشر کر رہے ہیں اس وقت، وہ ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک فیبا ریڈیو کی میزبان مینا پرویز صاحبہ، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی عرفان صاحب. ہلو جی عرفان صاحب، آپ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. رابطہ شاید نہیں ہو پا رہا. اور فیس بک پہ جو ہمارے ساتھ احباب موجود ہیں ان سب کا بہت شکریہ، یہ اپنے کامنٹس کر رہے ہیں. اور اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور مینا پرویز صاحبہ کے حوالے سے کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں، خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا نمبر ہے 0334295932 میں ہوں ارشد قریشی، کراچی ارلو پاکستان کی جانب سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور میں بارہا ممنون ہوں، مشکور ہوں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کا کہ وہ اس موقع پر ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر یہ پروگرام ہم کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم سماج ریڈیو پر اس وقت لائیو نشر ہو رہا ہے، جو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی فیس بک پر بھی نشر کیا جا رہا ہے، جسے بہت بڑی تعداد سن رہی ہے. اب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ہم دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی محمد عقیل بشیر پاکستان سے. جی عقیل بھائی. ارشد بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے سماج پاکستان سے ایک بہت آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے. میں دوبارہ کال کرتا ہوں، دوبارہ کال کرتا ہوں آپ کو. جی جی. جی یہ ہمارے ساتھ تھے عقیل بشیر صاحب، لیکن ان کی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عقیل جھنگ سے بات کر رہا ہوں ارشد بھائی. جی جی عقیل بھائی، اب آپ کی آواز صحیح ہے. جی جی عقیل بھائی، آپ کے علم میں ہے آج جو پروگرام نشر ہو رہا ہے وہ مینا پرویز صاحبہ کے حوالے سے نشر ہو رہا ہے، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. اعجاز کریم صاحب کی میں کال ابھی لیتا ہوں اس کے بعد. جی عقیل بھائی. جی جی میں ایکچولی پاکستان سے میرا براہ راست تو ان کا رابطہ نہیں تھا، جس طرح ماشاء اللہ ہمارے ہندو کے جنرل سیکرٹری جسٹس بھائی، لیکن آواز کے بہت بڑا تعلق رہا. میں نے فیبا ریڈیو سے اس کا تعلق جوڑا تھا جب 95 ہوتے تھے. جی جی. 95 کا جو سلسلہ شروع رہا، پھر شمول ناگر بھائی سے شروع زیادہ تعلق تھا، گلابی سے بہت زیادہ خوش تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سچی ہوئی مینشن تھی جنہوں نے ایسے پہ بھی ان کے کام کیا، خریدنا ان کے نام سے جیسوں پہ پروگرام کیا. جی جی. تو ان کے پروگرام بہت شاندار، اور ان کے نئے انداز سے بات کرتی ہوئی کہ سننے والا بس ان کے آ جاتا تھا کہ وہ بولتے گئے ہم چھوٹے گئے. بالکل. یقیناً جو ہے ایک بہت بڑا نام تھا ان کا پاکستان کا، اور ان کے ہزاروں لاکھوں سننے والے تھے، اور ہم سب لوگوں کا یکساں، اور ان کا جو اچانک سے بہت بڑا نقصان ہے. طور پر 60 دن جو فیبا ریڈیو پروگرام پاکستان کر رہے ہیں، اور میرا فیبا ریڈیو اسی سروس ہے جو 60 دن پر پروگرام پیش کر رہی ہے پاکستان سے. تو یہ ہمارا پورے ملک کا نقصان ہوا ہے. تو ان کی بہت جو ہے وہ ساتھی جو ہے وہ ہم سے بتائیں گے. تو ہم کو دعا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی روایت سے
जो जरूर अदा फरमाए और साथ है तो अल्लाह की तरफ जी अर्शद भाई। जी बहुत शुक्रिया अकील भाई, बहुत शुक्रिया। और दूसरे लोग भी कॉल पे मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। दूसरे अहबाब हमें कॉल कर रहे हैं। जी जी थैंक यू, शुक्रिया, फी अमान अल्लाह। अब से पहले कॉल आ रही थी हमारे पास एजाज करीम साहब की, तो गालिबन हम उनकी कॉल अटेंड नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास अकील बशीर साहब की कॉल आई थी। बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे साथ हमारे पास हैं और फेसबुक लाइव पे भी बहुत से हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत से अहबाब हमारे साथ हैं जिनमें एजाज करीम साहब, मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब, मोहम्मद अकील बशीर साहब, हक नवाज तगड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत तवील और बहुत अच्छा मैसेज आया है कि लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब लिसनर्स के दिल अजीज बाजी मीना परवेज़ मरहूम के हवाले से और उनके खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से प्रोग्राम किया। बहुत शुक्रिया, बहुत तवील है। इसके बाद मास्टर रेडियो लिसनर्स क्लब के रूह रवा मास्टर रेडियो लिसनर्स क्लब मास्टर महबूब अहमद साहब भी हैं, उनका भी मैसेज है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज करीम साहब शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम एजाज करीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में खुद आप पर एक दुख और रंज का पहाड़ टूटा। आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे, लेकिन आपने प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे मीना परवेज के हवाले से? जी, मीना परवेज के हवाले से सबसे पहले तो मैं उनके लवाहिकीन का इज़हारे हमदर्दी करना चाहूँगा और दीपा रेडियो के तमाम जुमला स्टाफ से बच्ची मेरी तरफ से इज़हारे अफसोस करूँगा। बेशक मीना परवेज का जो लॉस है ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए एक लॉस है, दीपा रेडियो के लिए बहुत बड़ा लॉस है। इसके साथ दीपा रेडियो को सुनने वाले सामईन जो है एक शख्सियत से जो है महरूम हो गए हैं, जिनकी आवाज जो है वो आवाज के दोष पे हमारे कानों में गूंजती थी, जो कि अब किस्सा माजी बन गई है। बेटा किसी के बिछड़ जाने का दुख और उसका जो अफसोस है वो मैं खुद भी फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने फादर को खोया है। बिल्कुल, जब इंसान बिछड़ जाता है तो उसका एहसास जो है उनके जाने के बाद होता है। यही वजह है कि इस वक्त जो दीपा रेडियो के सुनने वाले सामीन हैं वो एक शदीद शख्सियत से महरूम हो गए हैं। हम दवाईकीन से दुख और हमदर्दी का इजहार करते हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से, मैं अपने फैमिली की जानिब से, अपने क्लब मेंबरान की तरफ से इजहार अफसोस करता हूँ। वो एक शदीद शख्सियत थी जो कि न सिर्फ दीपा रेडियो के साथ बल्कि जो पाकिस्तान फैसलाबाद के साथ भी वो अटैच रही हैं और वो बच्चों के लिए जो प्रोग्राम करती थी। बहुत सारे बच्चे अब तो बहुत बड़े हो चुके होंगे, लेकिन जब उनको रेडियो पाकिस्तान से सुनते थे तो उनकी बात बड़ी इतनी वो असर करती थी कि बच्चों को फील नहीं होता था कोई बड़ा मुखातिब है या छोटा बच्चा, उनका हम एज जो है वो प्रोग्राम कर रहा है। बिल्कुल। इसी तरह मीना बाजी जब दीपा रेडियो पे प्रोग्राम करती थी तो वो हमारे लिए जो प्रोग्राम आते थे, जब हम उनको सुनते तो बड़ा एक अपनानियत का इजहार होता था। एक मसरूर आवाज की शख्सियत मालिक थी, वो कि उनके जाने से एक खला सा पैदा हुआ है। दीपा रेडियो के अगर पिछले दिनों देखें तो शमूदा चले गए, साथ साथ सब में चले जाना है। अब तो सिर्फ यादें और बस यादें रह जाती हैं। मैं दुख की फीलिंग जो है ना वो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसको कैसे बयान करूं। भारत इस दुख की घड़ी में हम उनके लवाहिकीन के साथ इज़हारे हमदर्दी, इज़हारे अफसोस करते हैं, ताकि उनकी अगली मंजिलें आसमान हो, हम उनके लिए सिर्फ यही कर सकते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, फी अमान अल्लाह। थैंक यू।
شیخوپورہ سے اعجاز کریم صاحب، ارلو پاکستان کے ایک بہت اہم ذمہ دار اور عہدیدار. ہمارے پاس کئی SMS موجود ہیں اور ہم گائے بگائے اس کو پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں کال کر رہی ہے، فیس بک پر موجود ہے. فیس بک پر ہم پڑھ رہے تھے حق نواز تگڑ صاحب کا میسج کہ ان کا جو میسج تھا آدھا ہم نے پڑھا تھا. جناب وہ بہت عظیم شخصیت تھی ان کا، اور ہمارا ساتھ شاید کوئی 23 سال پرانا تھا. تو جناب میری اور تگڑ ریڈیو لسنرز کی طرف سے تگڑ ریڈیو لسنرز کلب کی طرف سے ان کے خاندان کو، فیوا ریڈیو کے سٹاف کو تہہ دل سے تعزیت پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ایک میسج تھا ماسٹر ریڈیو لسنرز ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب کی جانب سے. السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان سے ہی شروع سے وابستہ ہوں. میں ایک مدت سے ان کو مرینا نورین کے نام سے جانتا تھا. ان کے ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے بھی وابستگی ہے. بہت عرصے پروگرام شام کنارے کیا. بچوں کا پروگرام پھول چہرے کرتی تھی اور حال میں ہی پروگرام 7 رنگ کر رہی تھی، مگر شاید بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے. بہت شکریہ ماسٹر محبوب صاحب، آپ پروگرام میں آئے اور بہت خوبصورت اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا. فقیر ہمارے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں، فقیر غلام حیدر سنجرانی صاحب. لکھتے ہیں تمام لسنر دوستوں کو فقیر غلام حیدر سنجرانی کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز کریم صاحب جو ہمارے ساتھ تھے وہ فیس بک پر بھی موجود ہیں اور ان کے میسیجز آ رہے ہیں. فیس بک پر موجود تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، جو ہمیں کال کر رہے ہیں، جو ہمیں SMS کر رہے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام پوری دنیا میں ہم سماج ریڈیو کے ذریعے سنا جا رہا ہے. ہم سماج ریڈیو کا ایڈریس آپ کے سامنے جو بینر ہے اس پر موجود ہے، اور بہت بڑی سامعین کی تعداد دنیا بھر میں اسے سن رہی ہے اور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے مینا پرویز صاحبہ کا. اور یہ پروگرام لائیو یوٹیوب پہ بھی نشر ہو رہا ہے اور فیس بک پہ بھی ہم سماج ریڈیو کی توسط سے نشر کیا جا رہا ہے. ایک ریڈیو کی جو FM ہم سماج کا FM ویب ریڈیو ہے، اس پر ایک سامعین کی بہت بڑی تعداد اس وقت موجود ہے جو پروگرام کو سن رہی ہے، اور جو میرے سامنے اس کی ریٹنگ آ رہی ہے دبئی، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، بحرین، دمام، بھارت اور ورجینیا اور کئی ممالک سے سامعین موجود ہیں. ایک بہت بڑا چارٹ سامنے ہمارے موجود ہے جہاں جہاں سے لوگ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. فیس بک پہ ہمارے پاس ایک اور چند میسج جنہیں ہم شامل کرتے ہیں. اعجاز کریم صاحب کہتے ہیں کہ بے شک فیبا ریڈیو کے سامعین کی ایک بہت اہم شخصیت سے محروم ہو گئی. عمران منیر صاحب ممبر ارلو پاکستان. یہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے کالر. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟ ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو کوئی سامع تھے جن کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور ہم ابھی کوئی کال لیتے ہیں. چند ہمارے پاس پہلے سے وائس میسیجز موجود ہیں، ہم انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن پھر اس کال کو اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ظہیر احمد جمالی. ظہیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی ظہیر بھائی اپنا آپ تعارف کرا رہے تھے. جی ظہیر احمد جمالی، پریزیڈنٹ ارلو سندھ نواب شاہ سندھ سے. جی ظہیر بھائی ہمارے ارلو پاکستان کے ایک بہت اہم ذمہ دار ہیں، بہت بہترین ڈی ایکسر ہیں، اور شاید ہی کوئی ریڈیو کسی سروس کا انہوں نے چھوڑا ہو، اور ریڈیو کے حوالے سے ٹیکنیکل ان کے پاس بہت سی معلومات ہیں جس سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے جمالی صاحب؟ آج
मीना परवेज साहिबा जो हम में मौजूद नहीं है, उनके हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं प्रोग्राम में जरूर शिरकत करूँ। अल्लू पाकिस्तान की जानिब से है। शुक्रिया। तो आज के जो मुनक़िदा प्रोग्राम है उसके हवाले से मैं बस इतना ही कहूँगा कि यकीनन सब रेडियो से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और मीना परवेज साहिबा का 30 साल जो सफर था, कैरियर था, रेडियो से जो वाबस्तगी थी और खासतौर पर फीबा रेडियो से, और उनकी खिदमत जो है फीबा रेडियो के लिए और खासतौर पर प्रोग्राम राय जिंदगी के लिए, उनकी ये जो काविशें हैं उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और एक बहुत अच्छी आवाज और एक बहुत ही शफीक शख्सियत से यकीनन हम महरूम हो चुके हैं। बिल्कुल। और उनकी काविशों को खिराजी तस्लीम पेश करते हैं हम लोग। और अल्लू पाकिस्तान का पूरा पैनल जो है उनके इस दुख की घड़ी में उनके लवाहिकीन भी साथ है। और मैं दिल से तहे दिल से ममनून हूँ अल्लू पाकिस्तान का भी ऐसी काविशों के हवाले से, क्योंकि अल्लू पाकिस्तान हमेशा, चाहे रेडियो हो या रेडियो के हवाले से कोई भी समाजी एक्टिविटी हो, हमेशा पेश रहा है। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आगे भी पेश रहेगा। इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छे अल्फाज में मीना परवेज साहिबा को खराज तहसीन पेश किया। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, ये थे हमारे साथ ज़हीर अहमद जमाली साहब। जो हमारे पास एक मैसेज है, लेकिन ये अस्सलाम वालेकुम। अल्लू पाकिस्तान की जानिब से मैं एडवोकेट ज़हीर अहमद जमाली। अच्छा, ये ज़हीर भाई का ही प्रोग्राम, ज़हीर भाई का ही पाकिस्तान मैसेज था। से। इनसे हमारी बात हो गई और हमारे पास कुछ और कॉलें आ रही हैं, हम उन्हें भी शामिल करेंगे। साथ ही हमारे पास बहुत बड़ी तादाद सामीन की फेसबुक पर मौजूद है, हमें मैसेज कर रही है। हमें एक मैसेज कौसर परवीन साहिबा का अभी मौसूल हुआ है व्हाट्सएप पे। आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से मोहतरमा कौसर परवीन साहिबा क्या कहती हैं। अस्सलामुअलैकुम। हिज़्ब पाकिस्तान शोबे ख़वातीन की जानिब से मीना आपी की वफ़ात पर हम सब ख़वातीन मेंबरान दिली रंज और अफसोस का इजहार कर रही हैं। मीना आपी की वफ़ात सुनने वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब हमें उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। मैं अपनी और अपनी तंजीम के सब ख़वातीन मेंबरान की जानिब से मीना आपी के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी करती हूँ। अल्लाह उनके अहले खाना को इस सदमा को झेलने की ताकत व हिम्मत दे, आमीन। कौसर परवीन, नायब सदर शोबे ख़वातीन, हिज़्ब पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मोहतरमा कौसर परवीन साहिबा कि आपने इस हवाले से प्रोग्राम में शिरकत की और मीना परवेज साहिबा को अपने अच्छे अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब हम एक और मैसेज सुनते हैं जो हमें अभी अभी मौसूल हुआ है, और ये हमें मिला है फरीहा रुबाब अंजुम साहिबा की जानिब से। जी, तो आइए फरीहा क्या कहती हैं इस हवाले से। मीना बाजी की अचानक मौत से जो खुला पैदा हुआ है वो किसी तौर भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर दिल अजीज शख्सियत थी। मेरे ख्याल में उनकी कमी हमेशा रहेगी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनके लवाकिन को सब्र ज़मीन अता फरमाए, आमीन। फरीहा रुबाब अंजुम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, शोबा ख़वातीन, एर्लो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया फरीहा, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। और अगर और कोई दोस्त कॉल करना चाहता है तो हमारा नंबर है 0334295932 0334295932 मैं हूं अरशद कुरैशी और हम समाज रेडियो से आज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं यादिश बखैर, जिसमें खुसूसी प्रोग्राम फीबा रेडियो से वाबस्ता एक बहुत खूबसूरत आवाज़ मीना परवेज साहिबा जो दुनिया से रुखसत हुई, उनके खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारे पास इस वक्त एक और मैसेज है आसिया परवीन साहिबा का। आइए आसिया परवीन साहिबा क्या कहती हैं सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मीना बाजी की अचानक मौत ने हम सबको उदास कर दिया है। वो बहुत अच्छी खातून थी।
اور خواتین اناؤنسر میں ایک منفرد مقام رکھتی تھی. ہم سب ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اللہ ان کے لوائقین کو اس صدمے پر صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آسیہ پروین پاک لسنر کلب جنگ ارلو پاکستان. بہت شکریہ آسیہ پروین صاحبہ کا کہ انہوں نے ہمیں میسج بھیجا، اور بہت سارے میسج، بہت سارے ایس ایم ایس اور فیس بک پر ہمیں پیغامات موصول ہو رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ بہت بڑی تعداد میں آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. اور ہم پھر ایک مرتبہ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے تمام عہدیداروں کے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر یہ پروگرام ترتیب دیا، جو ایک لازم پروگرام تھا، اور وہ ریڈیو کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام ترتیب دیتے ہوئے اس بات کا واضح ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل تنظیم سے وابستہ ہے جو پوری دنیا میں ریڈیو کے تمام شعبوں میں اپنا دسترس رکھتی ہے. اور اب ہم ایک اور ہمیں میسج موصول ہوا ہے صدف مہدی کا. اب ہم سنتے ہیں صدف مہدی کیا کہتے ہیں. السلام علیکم مینا آپی. میں جی اب ہم ریسیو کرتے ہیں کال، پھر اس میسج کو سنتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً آپ ہمارے دیرینہ ساتھی اور بہت اہم عہدیدار ارلو پاکستان کے محترم عبدالستار سلفی صاحب ہیں، اور میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. ان کی آواز ہی ان کا تعارف ہے. ریڈیو کا ایک بین الاقوامی نام، دنیا میں جہاں بھی ریڈیو کا نام لیا جاتا ہے ماہر عبدالستار سلفی سے سب شناسہ ہیں اور بین الاقوامی شخصیت ہے. جی اب ماہر عبدالستار سلفی صاحب، آج مینا پرویز باجی ہمارے درمیان نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام آپ نے ہمارے ساتھ ان کا کروایا تھا، اور میں چاہوں گا کہ آپ موجود ہیں تو پہلے آپ کی کال سے ہم مینا پرویز صاحبہ کی یہ آواز اپنے سامعین کو سنا دیں، اگر آپ کی اجازت ہو سلفی بھائی. جی اجازت ہے. جی والے ساتھیوں کو سلام عرض کرتی ہوں اور ریڈیو کے عالمی دن پر بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. اس سال ریڈیو کے عالمی دن کو ٹالرنس یعنی برداشت، پیس، امن اور ڈائلاگ یعنی مکالمے پر وقف کیا گیا اور اس طور سے منایا جا رہا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو بات چیت کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہیں. ہمیں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو قبول بھی کرنا ہے، تو تبھی امن ہوگا، خوشحالی ہوگی اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. ہمیں صرف ملک کے لیے نہیں بلکہ پورے ارض پر بسنے والے سبھی انسانوں کے لیے، باشندوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ سلامتی ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو. بہت خوبصورت پیغام مینا جی. ایک بات یہ کہ آج تک آپ نے پروگراموں میں میزبانی کی اور ہم رہے، آج خدا تعالیٰ نے یہ ہمیں عزت بخشی کہ آپ ہماری مہمان اور ہم میزبان. کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور جس روانی سے آپ بات چیت کر رہے تھے سننے والوں سے، مجھ سے بھی ابھی آپ نے لنک کر کے رکھا، تو بہت اچھا لگ رہا ہے. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے. بہت شکریہ. آپ نے بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود اپنے سامعین کو وقت دیا. یہ آپ کے سامعین سے اور ریڈیو سے محبت. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر کسی پروگرام میں رابطہ رہے گا. بہت شکریہ مینا جی. جی یہ پروگرام تھا ہمارا ارلو پاکستان کا ایک، جس میں مینا پرویز صاحبہ جو اس وقت موجود نہیں ہے، انتقال فرما گئی، ان کی آواز تھی. جی سلفی بھائی، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام سے جو ہم نے یہ ترتیب دیا ہے؟ ارشد بھائی، پہلے تو میری جانب سے اور پورے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے باجی مینا پرویز صاحبہ اور ان کے پورے خاندان کے لیے ہم صبر اور تسلی کی دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ابھی ارشد بھائی میں تھوڑی دیر بعد میں کال کرتا ہوں. ساجد حسن درانی صاحب ڈائریکٹر مختلف فیصلہ آباد، لاہور، ملتان، مٹھی، وہ اقتدار میں ہیں. ابھی ان کو کال کر دیں کیونکہ انہوں نے پھر قریب مصروف ہونا ہے، تو میں اپنی کال کر رہا ہوں، ان کو دعوت دے رہا ہوں. جی وہ موجود ہیں. جی آپ کال. ہلو. جی مہر عبدالستار سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہ درانی صاحب سے بات کروا رہے ہیں ابھی، اور ان سے بات ہوتی ہے تو پھر وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور مینا پرویز کے حوالے سے درانی صاحب کیا کہتے ہیں تو ان کی کال آتی ہے. جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی میسج اگر ہے تو ہم اسے شامل کرتے ہیں. غالباً ہم صدف مہدی صاحبہ کا السلام علیکم. مینا آپی محفل کو اداس چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئی. ان کا شاندار انداز گفتگو سامعین کو اپنے جادو میں قید کر لیتا تھا. شارٹ ویو ہو یا FM دونوں سروس میں ان کے ہزاروں سننے والے ان کے اچانک جانے پر بہت اداس ہے. میری دعا ہے اللہ ان کے اہل خانہ کو اس صدمہ کو برداشت کرنے کی ہمت دے. صدف مہدی پاک لسنرز کلب ارلو پاکستان. جی بہت شکریہ صدف مہدی صاحبہ. اور اس کے بعد ہم ایک کال لیتے ہیں. اگر ہماری بات ہو جاتی ہے تو پھر ہم مزید میسیجز لیں گے. درانی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، تو صدف مہدی کے بعد ہمارے پاس ایک اور میسج صدف دراز صاحبہ کا موصول ہوا ہے، اس کو بھی ہم سنیں گے، لیکن پہلے ہم اس کال کو ریسیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلفی بھائی. ساجد حسن درانی بھائی موجود ہیں. ابھی آپ ساجد معذرت چاہتا ہوں. جی ارشد بھائی. جی ساجد حسن درانی صاحب کو ہم بہت شکریہ کہتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں حاضر ہیں اور ان کا تعارف سلفی صاحب کرا چکے ہیں. کئی جگہوں پہ اسٹیشن ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور بہت جانی پہچانی شخصیت. مینا پرویز کے حوالے سے ساجد حسن درانی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے مینا پرویز سے انتقال کرنے کے. وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی. وہ میرا براہ راست ان کے ساتھ کبھی نہ ملاقات ہوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی اتفاق ہوا، لیکن وہ ریڈیو کی صداکارہ کے طور پہ میں انہیں ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں اور ان کا سیدھا ریڈیو کی اردو سروس کے لیے جو خدمات رہی ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے علم ہے. وہ بلا مبالغہ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، نشریات کے حوالے سے ایک انتہائی معتبر نام اور بزنس میں بہت پاپولر رہی، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ براڈ کاسٹنگ میں اپنی زندگی سر کی. بالکل ان کا انتقال یقیناً بزنس کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہے، اور ان کے اہل خانہ جو کیے اور آپ لوگ جو ان کے بالکل ایک طرح سے کولیگس ہیں ان کے لیے بھی یقیناً یہ ایک صدمے کا موقع ہے اور
दुनिया में एक तब्दीली लाने के लिए और हमारी सोसाइटी को, हमारी जो ग्लोबल एक विलेज कह दें कि उसमें रहने वाले हम जो सब लोग हैं, उनके लिए उन्होंने एक रहनुमा की हैसियत से काम किया है। आज मुझे जब ये गुज़श्ता रात मुझे पता चला उनके इंतकाल का, तो मुझे बड़ा सदमा हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि मैं समझता हूँ कि हमारी ब्रॉडकास्टर्स की एक कबीला है, ये कलाकारों का, फनकारों का एक कबीला है, जिसकी वो भी एक इंतहाई अहम फर्क थी। उनके इंतकाल पे मैं उनके जो अहले खाना हैं, उनके लवाहिदीन हैं, उनके स्कूल और सब उसकी दुआ करता हूँ, और उनके दुख में, उनकी गम की घड़ी में उनको बराबर का शरीक महसूस करता हूँ। तो मीना परवेज की यादें लिस्टर्स में, रेडियो के सामीन में और दुनिया भर के सामीन में, जहाँ जहाँ उर्दू प्रोग्राम सुने जाते हैं, मैं समझता हूँ कि हमेशा उनकी खिदमत को याद करता जाएगा। मैं इस सदमे की घड़ी में आप सबके साथ अपने दिली रंज और दुख का इजहार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हसन दुर्रानी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश किया मीना परवेज साहिबा को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान। जी सल्फी भाई। अब हमारे साथ अनवर जोसेफ साहब, जो मीना बाजी के करीबी साथी हैं, और एक ही टेबल पे एक कुर्सी उधर है और दूसरी कुर्सी उधर है, दोनों ने तकरीबन 25 से 28 साल तक का अर्सा गुजारा, और वो अभी हमारे साथ मौजूद है। जी अनवर भाई। मैं शुक्रिया मेहर अब्बास सल्फी भाई और मेरे मोहतरम मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब, आपकी इस मिशन के लिए जो आपने हर दिल अजीज मोहतरमा मीना परवेज के लिए मुनक्कद की, और आप शिबा रेडियो और राहे जिंदगी टीम के दुख और गम में शरीक होकर, उनके खानदान के साथ शरीक होकर, आपने जिस अंदाज में इस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं आपका दिल की अथाह गहराई से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का राह जिंदगी और शिबा टीम के साथ शामिल होकर इस प्रोग्राम को मुनक्कद करके हमारे गम में शरीक हुए हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और आपने ये साबित कर दिया है कि लिसनर्स और राह जिंदगी और शिबा एक खानदान है, और आपका इजहारे अफसोस करना, ताज़ियत करना, ये इस बात का सबूत है, और आपने रकम कर दिया है कि हम एक हैं और हम एक खानदान की अकाई में जकड़े हुए हैं। मैं फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और आपने आज का इसे मुनक्कद करके ये साबित कर दिया है, और उस खानदान के साथ जिंदगी के साथ शामिल होकर तो मीना परवेज जो एक आवाज की मलका थी, वो आज भी लिसनर्स के दिलों में राज कर रही है, और जब तक लिसनर्स मौजूद हैं, जिंदा हैं, मीना परवेज की याद इसी तरह रहेगी इंशाअल्लाह। मैं एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहर अब्बास सल्फी साहब और मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब, ये आपकी मोहब्बत है, और किस तरह आपने खराजे अकीदत पेश की है, दादी मीना को ट्रिब्यूट किया है, ये हमेशा जिंदा रहेगा, ये हमेशा कायम रहेगा, और ये आप लोगों की याद दहानी हमेशा हमारे दिलों पर रहेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर आप सबका। बहुत शुक्रिया अनवर भाई। अनवर भाई एक जाना पहचाना नाम, बहुत मोहब्बत करते हैं हर
किसी भी तकरीब में, किसी भी त्यौहार पर हमें ज़रूर याद करते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं। और आज कैसे मुमकिन था, जब मैंने अनवर भाई को मैसेज किया तो उनका बड़ा जज्बाती रिप्लाई आया कि बिल्कुल मैं हर सूरत में प्रोग्राम में शामिल होऊंगा, और वो शामिल हुए। अनवर भाई यहाँ पर हमारे साथ जो हम समाज रेडियो पर और फेसबुक पर हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, वो फीबा रेडियो से और मीना परवेज़ बाजी के ख़ानदान से, अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनकी हमेशा यादें हमारे दिल में रखे और हमें उनको इसी तरह खिराज तहसीन पेश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई। हेलो जी सल्फी भाई। जी अरशद भाई, अभी रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही मीना के तकरीबन कहने के दीवार इनकी साझी थी और ये इनके भाइयों की तरह थे और इनकी मिसेज भी बाजी मीना की बहनों की तरह थी। मतलब ये है कि एक फैमिली इनका ताल्लुक था, एक फैमिली रिलेशन था जो इन्होंने तकरीबन काफी अरसा फैसलाबाद में गुजारा है। तो उनसे उनके बारे में पूछते हैं कि वो कैसी शख्सियत थी। जी रिजवान भाई। जी रिजवान साहब जी, सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम और से बाजी मीना के बारे में कहना, इस वक्त जो हालत है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने दिया, जितनी मोहब्बत उन्होंने दी, सुनने वाले जरूर जानते होंगे। मैं वही रिजवान हूँ जो मुझसे प्रोग्राम के अंदर तबस्सुम कर रहा हूँ, और वो मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि मेरी उस्ताद भी थी। लफ्जों को बनाना, लफ्जों के साथ खेलना, वो मैंने बाजी में मुझसे सीखा था। और बाकी इंसान हम लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके जाने के बाद बता रहा हूँ कि अगर किसी को भी कोई मसला पेश है तो बाजी ने फौरन से हमें फोन किया है कि फलां बीमार है, उसको कॉल कर लें, फलां की डेथ हो गई है, आप उनसे रब्ता करें, उनसे अफसोस करें। यानी वो एक, अगर मैं कहूँ ना कि इस टाउन के इलाके में रहते हुए जितने 5-7 फैमिली साथ साथ उनको जोड़ने का जो सेवा है वो बाजी मीना के साथ रहता था कि उन्होंने किस दौर से सबको जोड़ा हुआ था, एक दूसरे के दुख दर्द शायद के साथ खड़े होना, कि अब कोई ऐसा नजर नहीं आता। और बाजी पे जो वॉइस ओवर करना या रेडियो में जो काम था, उसकी नफासत, उस काम उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। मैं ये कहूँगा जो वक्त उनके साथ गुजारा वो कमाल है। मैं और मेरी बीवी दोनों उनके साथ वक्त गुजारते तो खुशी गमी सब मिलकर उसका सामना करते, खुशी गमी सब मिलकर उसका सामना करते। और बहुत मशहूर मैं कहूँगा बच्चों के परवेज भाई, फेमस परवेज भाई के जाने के बाद उनका बाप बच्चों का नहीं गया था, क्योंकि बाप और माँ दोनों का प्यार और मायने के करते हुए बच्चे बाप को छोड़ी। और आज कभी हम बच्चों के साथ अफसोस कर रहा था कि मैंने कहा तो आज आपके वालिद और वालिदा दोनों के आपकी वालिदा नहीं दिखी, आपके वालिद की साथ, क्योंकि वो फेमस भाई के जाने के बाद उन्होंने से काम किया और बच्चों को स्टैंड किया, को सलाम। और फाज हम पढ़ करेंगे एक ही फिक्र इस बात करें जो हिम्मत की मिसाल और इस काम की करना शुरू करते हैं। बाकी अगर उनके रेडियो के हवाले से अगर मैं बात करूँ, उनके प्रोग्राम्स के हवाले से बात करूँ, तो वो सूरज को आईना दिखाने के मुताबिक है कि कितना उनका एक्सपीरियंस, उनका अपने काम में किरदार और एक मजा आर्टिस्ट होना वो दिमाग में, और उनकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रोग्राम जुमले में मेरे साथ मेरी बीवी के साथ हम एक्सचेंज करते थे। बहुत बहुत बहुत
मैं तो यही करूँगा कि पिछला कुछ हिस्सा से की बदल गई, शख्स सारे शहर के इंतजाम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपकी नवाजिश मेहरबानी। आपने अभी चूंकि बीना बाजी के घर से ही होके साथ बैठे हैं तकरीबन, तो आपके लिए बोलना जितना मुश्किल था मैं समझ सकता हूँ। मेरी आपकी समीना से भी बात हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं अब बोल नहीं सकती, मेरी उनसे भी ताज़ियत मेरी कबूल करें और आप सब भी ताज़ियत मेरी जानब से और पूरी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन की जानब से कबूल करें। रिजवान भाई, मुझे अच्छी तरह याद है मीना बाजी और आपका घर तकरीबन दरमियान में एक दीवार शायद, तो अगर आपके बच्चे नहीं मिल रहे तो वो मीना बाजी के घर सोए हुए हैं, अगर उनके बच्चे उनको नहीं मिल रहे तो वो आपके घर सोए हुए हैं। ये मुझे अच्छी तरह याद है और ऐसे ही चाहिए था। मैं कहता हूँ कि मोहब्बतें के लिए उनके रिश्ते जरूरी नहीं होते जी। रिश्ते देना माफ करना जी। जी रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया मीना बाजी के लिए, जो आप ताज़ियती प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हम समाज पर एक साथ मुसलसल लाइव जा रहा है और बहुत से तस्वीर सामईन उसको सुन रहे हैं और उसमें अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अभी हाफिज कमरोदी रेडियो का मौजूद है। रिजवान भाई, हम आपसे इजाजत चाहते हैं, आप मसरूफ हैं, बच्चों को पहनते हैं, थोड़ा उनको शफकत का हाथ उनके सरों पर रखें, हमारी तरफ से भी उनकी तज़कियत करें। खुदा आपके साथ, तो बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सल्फी, अरशद कुरैशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपके और मेरे और गरीना रेडियो के चाहने वाले हाफिज कमरोद्दीन साहब, आप उनको अपनी तरफ से वेलकम करें। मैं अब खामोश। जी जारिजो साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अरशद कुरैशी अर्ज कर रहा हूँ और आज फीवा रेडियो की एक बहुत अहम शख्सियत मीना परवेज साहिबा के इंतकाल के बाद इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है। आप एक बहुत सीनियर और बहुत बुजुर्ग और मंझे हुए सामे, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से कुछ इज़हार ख्याल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं क्या कहूँ, सोचा हूँ बड़ी बात। मेरा रेडियो से 1970 से वाबस्तगी है और सुबह रेडियो से मेरी 1990 से, लेकिन मैं खामोश और 2004 से मैं सुबह रेडियो को शामिल हो। तो क्या कहें, मीना साहिबा से रोज करने वाली रेडियो आवाजों की दुनिया में वो रोज खिदमत करने वाली और आवाज की मलका हमारी इतनी बहुत करीब रही कि कुछ वर्षों के अंदर 2007 से लेकर 2021 खुदा ने इतना वक्त दिया, उनकी तहरीरें मेरे पास आती रही, उनकी कालें मेरे पास आती रही। मीना बाजी साहिबा ने मुझे जमीन बाप को या बड़े भाई के मालिक समझा था और मैं भी मीना बाजी की बहुत सारी बातें, बहुत छोटी छोटी चीजें जो रिसीव करती थी और उसको बहुत सिलाई तरीके से उसमें इतने बहुत खुफिया जो मैं बयान नहीं कर सकता है। इंसान की खुफिया बयान करने इसलिए तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी तमाम पाकिस्तान के जो रहने वाले जितने भी दुश्मन भाई मुझे समझे
पहले तो मैं अपनी तरफ से उनको सलाम कहना भूल गया था, कहना भूल गया था। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी वर्ती मजाक था वो बहुत एक खानदान की तरह, एक बहन भाइयों की तरह हमारे घर से, हमारे बच्चों से उतनी दूर रहकर भी वो उतार फोन पर बातें और तहरीरों से बातें, बहुत बहुत वो छोटी छोटी बातें दिलों से बच करने वाली, और क्या हम कहें जो रिश्ते मेरे मर्दों के लिए जो खुदा ताला ने एक नेमत दी थी कुछ वक्त के लिए हमारे दरमियान, हम सारे उनके जो भी सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं या बैठ में सुनेंगे, तो उनकी दिलों में ये जरूर हमारी आज की बहन मुसलमान बहन मीना परवेज साहिबा की लाखों दिलों की, लाखों इंसानों की दिलों में रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके जज्बात, आपके साथ साथ के लिए। मेरे भाई मैं बहुत खुश हुआ आपने मुझे वक्त दिया, याद किया। बहुत शुक्रिया हाफिज जोरेजो साहब, एक बहुत सीनियर बुजुर्ग सामे हमारे साथ थे और ज़बरदस्त अल्फाज में मीना परवेज साहिबा को खिराज तहसीन पेश किया। बहुत शुक्रिया। सल्फी भाई आपका भी, अगर और आपके साथ कोई दोस्त हैं तो बताइए। खुदा को बहुत बहुत पसंद है, मेरे पास दोस्त तो नहीं है। मैं सल्फी भाई से बात कर रहा था जोरेजो साहब। जी मेरे सल्फी भाई आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, अभी हमारे साथ अनवर भाई मौजूद हैं और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि मीना परवेज बहन से जो हमारा रिश्ता और ताल्लुक था वो एक सामने के तौर पर नहीं था, बल्कि हम एक फैमिली मेंबर की तरह थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब खतों का जमाना था और फोन वगैरह नहीं होते थे तो अनवर भाई इस बात की गवाही देंगे कि जब हमारा बड़ी कैंप में जब मुझे ये आजाद हासिल है कि बहुत सारे लिस्नर उधर मौजूद थे कैंप में, तो बात की थी लेकिन वो दूसरे होटल में ठहरी हुई थी, तो उन्होंने अहमद साहब को बोला कि सरदी साहब से मेरी मुलाकात करवाएं क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है। और जब मैंने देखा तो मीना बहन ने मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह सर पे हाथ रख के कहा कि मैं तो समझती थी कि तू जैसे दिखता है तो बहुत बड़ा होगा लेकिन तू तो छोटा है। तो मैंने कहा कि ये आपकी मोहब्बत है, और ये उनकी बातें हैं जो आज तक मेरे जहन में होती हैं। मेरे घर में बातों का जिक्र होता है, उनकी तस्वीर हमारे घर में मौजूद है, बच्चे देखते हैं तो उसे बोलते थे। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि मेरा जब पहला बेटा हुआ तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं गया वहाँ पर। फिर PCRM जो शिका का दफ्तर है फैसलाबाद में, वहाँ पर भी मुलाकात हुई, उनके घर पर हुई। और ये सब अनवर भाई जानते हैं कि वो कितनी मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी, ख्याल रखने वाली शख्सियत थी। बिल्कुल ऐसे ही अनवर भाई जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये इस बात का गवाह हूँ कि ये आज आप लोग जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सभी आप दादी मीना से आप प्यार करते रहे हैं और दादी मीना आपसे आपकी ये मोहब्बत जो है वो ही साबित कर रही है कि दादी मीना जो है वो हमारी बहन थी। और आज हमारे दिल जो गम में है, दुख की हालत में है, ये सिर्फ उसी वजह से है। अब आज की दुनिया का ये जो रिश्ता है हमारे दरमियान, ये हमारा खूनी रिश्ते से बढ़कर है। अगर ऐसा ना होता, आज हमारे दरमियान में ये मोहब्बत ना होती। तो ये वक्त था कि ठीक है, हमने रेडियो प्रोग्राम सुनते रहेंगे। आज मीना भी कोई और आ जाएगा, लेकिन यही इस बात का सबूत है कि हम जो इस
आवाज की दुनिया से जकड़े हुए थे वो हमें साबित कर रहा है और हमने साबित किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं ये जब ये 23 तारीख की बल्कि 23 की सुबह हो गई थी 3:30 बजे जब मुझे उनकी बेटी की कॉल की, तो मैंने उसी वक्त फेसबुक पे एक पोस्टर बना के लगा दिया क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं सबको बता सकूं। तो यकीन जानिए कि उस दिन से आज तक मैंने बड़े बड़े लिसनर्स जो हैं उनको लिटरली रोते हुए मैंने मेरे साथ बात करते हैं। ये बाजी मीना की जो उनकी मोहब्बत है वो हमारे अंदर फाटी आ रही है और यही वजह है कि हमारे हर दिल और हर आंख जो है वो इस गम में मसरूफ है, इस गम की हालत में है। मेरा ख्याल है कि इतना शायद किसी ने अपने का बिना दुख किया हो जितना हमारे लिसनर्स ने बाजी मीना को रहते अकीदत पेश की है और बाजी मीना के लिए उनकी आंखें नम हैं और दिल गम की हालत। जी बिल्कुल ऐसा ही। और फिर सचिन भाई आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका एक लेटर अभी तक मेरी फाइल में, पर्सनल फाइल में मेरे क्लास में जरूर होती है और जब मैं वो खत देखता हूँ तो यकीन जानिए कि मेरा दिल खुश हो जाता है कि हमारा ये तलब, हमारा ये सिर्फ रेडियो की दुनिया तक ही नहीं बल्कि एक खानदान की जी उम्मीद है कि आप इस काफले में शामिल रहेंगे और उसे मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे। जी जरूर। अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मौजूदगी में यहाँ ये अर्ज करना चाहता हूँ, अरशद कुरैशी भाई भी सुन रहे हैं और चल के हमें फेसबुक पर बहुत सारे ममालिक ने सुना और देखा भी जा रहा है हमारे हम समाज पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे साथ नदीम जान साहब हैं, फीबा रेडियो के कह लेंगे खतूत शोबा के इंचार्ज हैं। तकरीबन 1.5 साल हो गया उनको ये जिम्मेदारी संभाले हुए, वो भी इस काफिले का हिस्सा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम में बाजी मीना के लिए क्या अल्फाज कहते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके काम के हवाले से, उनकी आवाज के हवाले से। जी नदीम जान भाई। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सबको पेश करता हूँ कि बहुत अहम बात होती है कि हम अपने को याद करें जो उन्होंने खिदमत की है, इंसानियत के जो है वो इज्जत है। बाजी राम को फैलाते आवाज जो खुदा में और इंसानियत के राम को पूरे किया तो हम लोग उनके खानदान के लिए बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। मैं सभी सुनने वाले साथियों को सलाम अर्ज करती हूँ और रेडियो के आलमी दिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इस साल रेडियो के आलमी दिन को टॉलरेंस यानी बर्दाश्त, पीस, अमन और डायलॉग यानी मुकालमे पर वक्त किया गया और इस तौर से मनाया जा रहा है। बहुत सी चीजें हैं जो बातचीत के जरिए से हल हो सकती हैं। हमें बर्दाश्त करने के साथ साथ एक दूसरे को कबूल भी करना है, तो तभी अमन होगा, खुशहाली होगी और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। हमें सिर्फ मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरा अर्ज पर बसने वाले सभी इंसानों के लिए, बाशिंदों के लिए दुआ करनी है कि सलामती हो, खुशहाली हो, तरक्की हो। बहुत खूबसूरत पैगाम मीना जी। एक बात ये कि आज तक आपने प्रोग्रामों में मेज़बानी की और हम आपको सुनते रहे, आज खुदा ताला ने ये हमें इज्जत बख्शी कि आप हमारी मेहमान और हम मेज़बान, कैसा लग रहा है?
तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस रवानी से आप बातचीत कर रहे थे सुनने वालों से और मुझसे भी हमें आपने लिंक करके रखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद अपने सामीन को वक्त दिया। ये आपके सामीन से और रेडियो से मोहब्बत, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी प्रोग्राम में राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया मीना जी। जी, ये मीना बाजी की आवाज़ थी जो आप सुन रहे थे हमसे गुफ्तगू। ये आखिरी गुफ्तगू थी मेरी मीना परवेज साहिबा से, और बहुत खूबसूरत अल्फाज उन्होंने अदा किए और दिल भर आता है इनकी आवाज़ सुनकर। अल्लाह ताला उनके आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला अगली मंजिलें आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जी सल्फी भाई। अशरफ कुरैशी भाई, बहुत ही उम्दा तरीके से खराज तहसीन अनवर भाई ने भी पेश किया, हाफिज़ रेडियो साहब ने पेश किया, इजाज करीम भाई ने, और जितने भी दोस्त आए, साजिद हसन दुरानी भाई स्टेशन डायरेक्टर मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद और मिट्टी, उन्होंने भी अपने खूबसूरत अल्फाज के जरिए पूरे खानदान से ताज़ियत की। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अभी अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमारे ये साथी भी हैं, भाई भी हैं, और अर्शद भाई आपसे तो मुलाकात हमारी कैंप में नहीं हुई, और ये कैंप की मैनेजमेंट में से एक साथी हैं हमारे अनवर भाई, तो जिनके साथ हमारी तमाम गुफ्तगू ऐसे होती है जैसे बरादराना माहौल होता है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो फीबा रेडियो के प्रोग्रामों के हवाले से जो बाजी मीना की खिदमात हैं उनके हवाले से अगर कुछ कहना चाहें तो हमें ज्यादा खुशी होगी। मैं इनसे ये भी माजरत चाहता हूँ कि मैं अपनी तबीयत की नसाजी के बायस आखिरी रसूमात में शिरकत न कर सका, वगरना आप जानते हैं कि मैं रहने वाला शख्स नहीं था, या ये कह दें कि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं शिरकत नहीं कर सकता था। तो मैं जरूर हाजिर हूँगा ताज़ियत के लिए, घर भी जाऊँगा, ऑफिस में भी, और मेरा पिंडी का भी चक्कर है ताज़ियत के सिलसिले में। जी अनवर भाई, सबसे पहले आपने पहले तो फिर एक बार शुक्रिया। जहाँ तक बाजी मीना की खिदमत के तल्लुक से है, जिस दिन उनकी आखिरी रस्मात थी, हमने पाकिस्तान के तमाम लिस्टनर्स को दो ग्रुपों में लिया कि एक ननकाना साहब शहर से मीट करेंगे पूरी बहुत सारे लिस्टनर्स को, और दूसरा अब्दुल गफूर कैंपर करेंगे। तो हमने शिकस्त से ठीक किया कि अगर उसमें नाम मेहर सल्फी का इस वजह से लिया रखा गया कि मेहर सल्फी अनवर और अरशद लाल साहब तीनों बाजी को अपनी बहन समझते थे, और मुझे आज भी वो याद है जब अरशद भाई ने और मैंने और आपने बाजी मीना के सर का हाथ करके कहा कि आप हमारी बहन है और आप हमारी माँ भी। मुझे आज भी वो अल्फाज याद है, और हमने ऐसा अंदर ने ऐसा साबित करके दिया, और आज मीना मेरा बहुत साथ हुआ। वो मेरे एक भाई भी थे, मेरी बहन थी, और जो कुछ मैंने उनसे सीखा है उस हवाले से वो मेरे उस्ताद है, और उस्ताद जो होता है वो एक माँ और बाप के बराबर होता है। जहाँ तक उनकी खिदमत के बारे में मैं कहूँगा, सल्फी भाई उनकी खिदमत इतनी छुपी नहीं थी, वो आप लोगों ने भी साबित कर दिया है कि वो एक उनकी खिदमत, उनका काम, लिसनर्स के दिलों में वो किस तरह समा गए थे, और लिसनर उनको नहीं भूल सकते हैं। जीबा पे जो उन्होंने खिदमत की है, जीबा से मैंने कल शहबाज सलीम साहब जो डायरेक्टर हैं शिबा रेडियो के, उन्होंने जब उनकी खिदमत में के बारे में बताया कि जब
बकायदा प्रोग्राम था गुलदस्ता, तो मैं हैरान हो गया कि मीना परवेज की कमोबेश 30 साल से ज्यादा शिफा पर उनका काम है। उन्होंने शिफा रेडियो पर बिजनेस के साथ जो बात की है, एक बहादुर और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैंने अभी तक नहीं देखी। ना किसी के सामने उसने हाथ लाया, बल्कि उसने हमेशा दूसरों के लिए काम किया, दूसरों की मदद की है और दूसरों के गम और खुशी में शरीक होकर उनकी खुशी को बढ़ाया, उनके गम को कम किया है। इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह की शख्सियत थी, वो एक खूबसूरत शख्सियत, एक बहन थी, एक माँ थी, एक भाई था और बच्चों पर उसने अपने बच्चों को एक अच्छी माँ और एक अच्छा बाप बनकर दिखाया। और आज हम उस तरह की तरह कर रहे हैं, जो लिसनर्स महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक एक लिसनर्स ने उनको कहा लिखा है कि वो आवाज में बनकर थी और वो हमेशा से रूट कर उनके पाकिस्तान से अपनी चले गए। ये सच हकीकत ऐसा ही है और समझे मैं इस बार फिर आप लोगों का शुक्रगुजार। उनको मैंने जब मैं फैसलाबाद में उनके ऑफिस में आया था तो उस वक्त उनका प्रोग्राम चल रहा था चिरागे राह। जब चिरागे राह जब वो पेश करती थी तो अक्सर लिखते थे कि मीना जब बात करती है ऐसे लग रहा है जैसे हंस रहे हो जी। और अक्सर 3 साल मैंने भी वहां गुजार दिए और मैंने उनकी आवाज में जो पहली आवाज थी चिरागे राह की, जब मैं 1980 में गया था तो आज तक उनकी आवाज से एक आवाज उनको जो है वो रब ताला ने रब्बे कायनात में एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रखा था। हम वो एक आम शख्सियत थी, वो एक आम मीना थी, लेकिन जब उनकी आखिरी रस्मात थी तो वहां पे मैं उन लोगों को भी भूल नहीं सकता। पास्टर यानी पादरी खालिद नाज, जिन्होंने PMI पे जहाँ पर मीना काम करती रही है, उन्होंने ये साबित किया कि ये आम पर्सनैलिटी नहीं है, ये आम शख्सियत नहीं है। और वहाँ पे उनकी मिसेस को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, मिसेस एस्टर खालिद नाज। और फिर उन्हीं के साथ उनके बेटे जॉन, जिन्होंने सबसे बड़ी के साथ मुझे भी शामिल किया। मैं जॉन और एस्टर नाज आखिरी बात को जब उनकी प्रोग्राम को तब्दील किया तो आज तो सुबह बहुत सारी शख्सियात ने और उस दिन भी शख्सियात ने कहा कि आपने एक रोल मॉडल का रोल अदा करके साबित किया है कि मीना एक आम शख्सियत नहीं थी, मीना एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जी। और आज मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ संचिता साहब और अर्शद कुरैशी साहब ने साबित किया है तो वो मीना आम नहीं थी, मीना एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ये अर्ज करता चलूँ कि हमें अभी ज्वाइन किया है अरशद साकिब दोदल साहब ने ननकाना साहब से। अभी उनको सुनते हैं कि वो मीना बाजी के बारे में अपने तासुरात क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। संजू भाई, अरशद कुरैशी साहब और अनवर साहब कितने दोस्त साहब यहाँ बैठे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। जब खबर मेरे तक पहुंची, ये तकरीबन रात का टाइम था, तो उसी वक्त मैंने अनवर साहब को मैसेज किया। मैं ड्यूटी पे था और इस वक्त भी मैं ड्यूटी पे हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक पुलिस मुलाजिम हूँ और ड्यूटी है मेरी, आपको शायद पता ही होगा। तो रात को मैंने मैसेज किया कि आज मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे खाना को यकीन नहीं हो रहा, जब सुनकर आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वो दुनिया सामने है, एक दिन सबको छोड़कर जाना है, ये नहीं जाना है, हर एक को जाना है।
बेशुमार ससुराल से तलब बना था सीधा खानदान से, और पहली मुलाकात बिलावल में भी हुई थी कभी दुनिया में तो हस्बैंड से हमसे, और फिर शमम नागर साहब और काफी सारे दोस्त हैं, और हमारा ये तलब अभी तक चलता है और इंशाअल्लाह ये चलता ही रहेगा। बाकी बहुत लेकिन हमारी बात की सुनी ये है कि जब हम में से कुछ छोड़ के चला जाता है उस वक्त हमारे लिए वो गुजरे नजात बन जाता है, लेकिन जब वो होता है उसकी हम कदर नहीं करते। खासतौर पर उनके हस्बैंड जो हैं उनकी वफात के बाद जो सपना उनको पहुंचा, और अनवर साहब और मैंने और सल्फी भाई और दीगर आबाद ने जो कोशिश की इस सिलसिला में, वो शायद किसी को पता हो या किसी को ना हो, बार बार बाजी मीना बहुत ही अहम शख्सियत थी हमारे लिए, जब वो जिंदा थी तब भी, और अब जब वो इस दुनिया से चली गई है तब भी हमें उनकी कमी जो है ना वो शिद्दत से महसूस होती रहेगी। और सीधा में जो खला पैदा हुआ है शमो नगर के बाद, शराब के बाद और अपनी मीना बाजी के बाद, शायद ये पूरा ना हो सके और मुमकिन भी नहीं है। ठीक है, का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, एक के बाद दूसरा आता रहेगा और हम भी जाते रहेंगे, लेकिन ये जो खला है ये कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मैं नहीं आ सका अपनी ड्यूटी की वजह से, और इस वक्त भी मैं ड्यूटी में हूँ, और मुझे अफसोस है कि मैं नहीं पहुँच, लेकिन मैं आऊँगा इंशाअल्लाह सवाल भी जाएंगे और रावलपिंडी के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि हम खानदान की तरह हैं और खानदान के अफराद जो है ना एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया अरशद साकिब गोंदल साहब, बहुत खूबसूरत अल्फाज में मीना परवेज साहिबा को खराज तहसीन पेश किया, और आप इस वक्त अपने ड्यूटी पर मौजूद हैं, उसके बावजूद आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत के आपने प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। और सल्फी भाई आपका गोंदल साहब को लाने का बहुत शुक्रिया। अरशद भाई से मैं अर्ज करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी पर अंजाम दें, उनकी हाजिरी करके प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। साकिब भाई आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरे शामिल हाल हैं, अनवर भाई के और पूरे टीबा के शामिल हाल रहती हैं। आप हमारा नाज हैं, आप हमारा फख्र हैं। सलामत रहें, आबाद रहें, सदा खुशियां मांगे। जी 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 सर, मुझे याद है कि अभी हम ऑन एयर हैं, ऑन एयर पर 30-35 को मुझे कॉल आई, बाकी मीना का मतलब जब मैंने देखा तो मेरा जो हौसला है ना वो पहले टूट चुका था कि इस टाइम कॉल आना तो वो मेरे लिए नामुनासिब हो क्यों बात है। अब गल जो हुई जो फर्स्ट करने का तो मैं कॉल सेंड करने के लिए मेरा दिल कर रहा था कि मैंने कॉल तो मैंने कॉल उठाई तो इसका बेटी जो है कॉल की, उन्होंने सिर्फ इतने लिफाज हुए हैं, चाचू मामा चलो भी हमें आपस में बात मेरा एक दफा मेरा सांस में मेरी बंद मैं खामोश हो गया कि क्या है, लेकिन वो तबक्का सोचती है कि जब मैंने कोशिश लगाया तो अरशद गोंदल की तकरीबन 10 मिनट बाद कॉल आ गई। इतना रो रहे थे 10 दिन क्या होगा, इतना सोच के रोका रहे उन्होंने, रोका मेरे साथ बात की आपस में रोकते रहे, मैं कभी मैं रो रहा था कभी ये रो रहे और हम बातें भी करते रहे। मैं
सभी दोस्तों को बताता चलूं कि हमारा प्रोग्राम था 8 बजे से लेकर 9 बजे तक था, लेकिन 9:26 हो चुके हैं, लेकिन हमारे सामीन की तादाद भी बहुत ज्यादा है। अभी तक हमें कॉल करने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, कमेंट करने वाले भी काफी तादाद में मौजूद हैं, और बाकी डिटेल जो है दूसरे जो चैनल जो हैं उन पर अरशद कुरैशी भाई हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। जी अरशद भाई। जी, बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह सामीन की, नाजरीन की सुन रही है, देख रही है, कमेंट्स कर रहे हैं, और रेडियो पे बहुत बड़ी तादाद इस वक्त हम समाज रेडियो जो ज़ेनो एफएम के थ्रू पूरी दुनिया में नशर हो रहा है, इसमें मेरे सामने मौजूद है दुनिया के कई ममालिक में। अभी कोई अर्जेंटाइन से एक थे जिन्होंने दोबारा दरख्वास्त की थी कि मीना परवेज़ जी की आवाज़ मुझे सुनाई जाए, क्योंकि मैंने आज उनकी आवाज़ कई बरस बाद सुनी है। वो गालिबन पाकिस्तान से गई हुई हैं, तो अर्जेंटाइन और यूएई व अमेरिका, भारत, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई और दुनिया के कई ममालिक में ये सुना जा रहा है, और फेसबुक पे भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और मेरे पास कुछ मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भी आए जो इंशाल्लाह अभी मैं सल्फी भाई की कॉल मुनक़ता होने के बाद आप सामीन को सुनाता हूं, जो मीना परवेज़ बाजी के हवाले से नशर है। फेसबुक पे जितने दोस्त अहबाब हैं बहुत बड़ी तादाद से कमोबेश 1.5 घंटे से हमारे साथ मौजूद हैं, और यकसानियत के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और अपने होने का एहसास दिला रहे हैं मीना परवेज़ साहिबा के हवाले से। फीवर रेडियो को, राय ज़िंदगी को और उनके अहले खाना को दिली ताज़ियत पेश कर रहे हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद कुरैशी भाई, अगर किसी की कॉल आप लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, मुझे इजाजत दें। जी 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 सल्फी, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया सल्फी भाई। आपका बहुत ममनून मशकूर कि आपने बहुत अहम शख्सियात से हमारा राब्ता कराया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सल्फी भाई थे जिन्होंने हमसे अनवर भाई से और बहुत से उनके मीना बाजी के रफ़्क़ार से बात कराई। अभी हमारे साथ हमें मिसेस समीना सरदार सतोड़ा लिसनर्स क्लब टेक्सला से जो एलू मेंबर भी हैं, उनका अभी एक पैगाम मौसूल हुआ है, और वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भैया, मीना बाजी की अचानक मौत से बहुत दुख हुआ। उनके जाने से दुनिया भर के सामीन एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ से महरूम हो गए। हम उनके लवाहिकीन के दुख और गम में बराबर के शरीक हैं। इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन की बहुत मशकूर हूँ कि दुख और गम की इस घड़ी में हमारे साथ मौजूद है। मिसेस समीना सरदार सतोड़ा लिसनर्स क्लब टेक्सला मेंबर इल्लू पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया समीना साहिबा, आपने पैगाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और खराज तहसीन पेश किया। हक नवाज तग्गड़ साहब, आपका शुक्रिया, आप फेसबुक पर भी मौजूद हैं और आपका पैगाम भी मौसूल हुआ है। और अस्सलाम ज़हीर अहमद जमाली साहब, आपका भी पैगाम मौसूल हुआ है। इर्लू पाकिस्तान के ग्रुप से हमें बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, और हम समाज एफएम रेडियो पर दुनिया भर से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और बहुत अच्छे मीना बाजी के हवाले से कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं, और फेसबुक पे भी एक बहुत बड़ी तादाद है। अभी तक हमारे साथ गुलाम जाफ़र साहब फेसबुक पे अभी अब आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है। कुछ हम जिक्र कर रहे थे मैसेजेस का जो हमारे पास आए थे। गालिबन हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एक बहुत अहम शख्सियत, हमारे दोस्त इल्लू पाकिस्तान के बहुत अच्छे मेंबर हम समाज के स्टूडियो में मौजूद है, शाहिद चांडिया साहब, जिनका ताल्लुक राजनपुर से। वो मुसलसल 1.5 घंटे से हमारे साथ हैं और मेरी मावनत कर रहे हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बैठे और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द सराइकी में हम समाज रेडियो पे प्रोग्राम करेंगे, इब्तिदा होगी, जैसे भी करें, और फिर इंशाल्लाह ताला इनको आप सुनेंगे। और हम जिक्र कर रहे थे मैसेजेस का, तो शाहिद साहब हमने शायद
सदफ मेहदी साहिबा का सुना था मैसेज। उसके बाद अब हम सुनते हैं एक और पैगाम हमें मिला है सदफ दराज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मीना आपी की अचानक वफात ने जहाँ उनके खानदान को सोच में मुब्तला किया है, वहीं हम सब सुनने वालों को भी गहरे सदमे में मुब्तला किया है। इनकी आवाज और इनका अंदाज सबसे जुदा था। वो एक बेहतरीन अनाउंसर थी। हम सब सामीन इनको हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह इनके लवाहिकीन को सब्र दे, आमीन। सदफ दराज, पाक लिसनर्स क्लब, दिल्ली, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सदफ दराज साहिबा। हमें एक और फहद हुसैन अंजुम साहब का भी हमें अभी पैगाम मौसूल हुआ है। बहुत अच्छा लगा कि इस प्रोग्राम में इतनी बड़ी तादाद में सामीन ने शिरकत की। फीवा रेडियो से मोहब्बत करने वाले, मीना बाजी से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे हम समाज एफएम रेडियो पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, एसएमएस, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल और बहुत अच्छे से खिराज अकीदत पेश किया। देखते हैं फहद हुसैन अंजुम साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। जी फहद हुसैन अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीना बाजी भी हमें छोड़ गई, ये सानिया बहुत बड़ा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि वो भी महफिल से उठ जाएगी। बहरहाल जो आया है उसने लौट कर जाना है। मीना बाजी सुनने वालों के दिलों में सदा बसती रहेंगी और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी और उनकी आवाज का जादू कभी भी दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फहद हुसैन अंजुम, पाक लिसनर्स क्लब, चंग, दिल्ली, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अहदेदारान बशमूल अरशद इकबाल साहब, सल्फी साहब, सरदार मुनीर अख्तर साहब और अकील बशीर साहब के इन्होंने आज के प्रोग्राम में भरपूर ताउन किया। और हम समाज रेडियो, हम समाज टीवी, हम समाज वेबसाइट, हम समाज यूट्यूब चैनल पर और हम समाज एफएम रेडियो पर इसे बराह रास्त हमने नशर किया। हमारा इरादा था इस प्रोग्राम को 8 बजे से 9 बजे तक इख्तिताम पर ले जाने का, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की कॉल, आप लोगों की शिरकत ने हमें ऐसा करने से रोका और हम अब 1.5 घंटे से भी ज़ायद इस प्रोग्राम को कर चुके। अब हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर चलते हैं। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको अर्ज किया, मेरे साथ हम समाज स्टूडियो में इस वक्त शाहिद चांडिया साहब भी मौजूद हैं जो मेरे माविन हैं और मेरे मदद कर रहे हैं मेरे मुख्तलिफ टेक्निकल हवाले से। तो एक बार फिर शाहिद चांडिया साहब को शुक्रिया। अब इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने कॉल की उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर जो लोग मौजूद रहे उनका बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में इस वक्त मैं मुखातिब हूँ एफएम हम समाज रेडियो पर, जो आज बहुत बड़ी तादाद में इस बराह रास्त नशरियात को सुनने के लिए मौजूद है। और मैं इसकी जो एक रेटिंग है जो मैं सामने देख रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद में सामीन अहबाब मौजूद है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर मौजूद तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। शम्मा नाहिद साहिबा हमारे पास, उनका अब फेसबुक पे आया है। हम मेहमानों को जानने कौन थी, अल्लाह करीम जिनके मक़फ़िरत फरीक़े रहमत करे। ज़बर जमील शम्मा नाहिद साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे प्रोग्राम में आई और अच्छा लगा कि आप आई, इख्तितामी लम्हात में आई। और मैं एक बार फिर नाम लेकर उन तमाम शख्सियात का, उन तमाम दोस्त अहबाब का तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और मीना परवेज़ साहिबा को खिराज अकीदत पेश किया। उनके अहले खाना से, उनके रेडियो से वाबस्ता रुफ़क़ार से ताज़ियत की। अरशद इकबाल साहब आपका शुक्रिया। सरदार मुनीर अख्तर साहब आपका शुक्रिया। अकील बशीर साहब आपका शुक्रिया। एजाज़ करीम साहब आपका शुक्रिया। ज़हीर अहमद जमाली साहब आपका शुक्रिया। और दुरानी साहब आपका बहुत बहुत, साजिद हसन दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर जोसेफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब
जो बिल्कुल बराबर में मीना बाजी के रहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बुजुर्ग सामे हाफिज जोरेजो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम जॉन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। महर अब्दुल सत्तार सल्फी जो आज के रूह रवा प्रोग्राम के थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर परवीन साहिबा का शुक्रिया। फरीहा रुबाब अंजुम साहिबा का शुक्रिया। आसिया परवीन साहिबा का शुक्रिया। सदफ मेहदी साहिबा का और सदफ दराज साहिबा का भी शुक्रिया। फहद हुसैन अंजुम साहब का शुक्रिया। अरशद साकिब गोंदल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई नाम रहने से रह गया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। उन तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। और अमजद खान साहब, भावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब भावल नगर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मीना परवेज़ के हवाले से जो प्रोग्राम था उसमें आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में, अल्लाह ना करे कि हम इस तरह का कोई प्रोग्राम लेकर हाजिर हों, कोई भी दूसरा प्रोग्राम अगर करते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं अल्फाज के साथ अरशद कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ज़रूर ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं। फ़ी अमान अल्लाह।